Good evening, guys. Am I audible? Yes. Yes, sir. Okay. So let us begin. Okay. So again, we have started with the DAX journey where we have understand what exactly DAX is and how to use the DAX, isn't it? Majorly, we understood that whenever we are using a DAX, DAX is basically divided into two specific output, or let's say two specific feature, which is measure and column, where measures are used to store any value which is accumulated, or let's say summarized. And columns are used where you want to create something, or let's say you want to generate an output, but that output will followed by row details, isn't it? For example, applying discounts, for example, finding out differences like that, details would be there, which would be row by row. Then we will go for columns. Based on that, we had also understand that when we have to symbolize that, or let's say when you have to show that details, you can use visuals, you can use cards, you can use visuals also for same output, also for some visualizations also. This one not only helps for this, but it also helps to understand value based details. For example, जैसे हमने कल देखा था कि when we are using these values for representation, it is single value representation, but that value which we have created in this visual, we applied on this here also. We understood that it can be applied in different areas, different visuals and different tables also. In this table, we did added, in this table, we did added just minimum sales. This minimum sales was not based on this, let's say, was not based on orders table. It was created for our sales. This one, sales only. Okay, but still it is applied in this orders table. So it means that if this visual is used over here, for this visual we created, but for this visual also we can use that. So that particular value which is available over here as a measure can be used in visuals also for filtering purpose. As of now you can see this is filtration. Minimum sales that are placed in category where specific column or let's say specific category of office supplies is been asked, it is showing exact value which is minimum sales done in that particular category, isn't it? So this way you can just not create these values, but you can use that particular measures for visuals also. Then here, let's say you want, as you can see, this is all our own stuffs, isn't it? This is where we make ourselves. This is all thing that we create by our own. But can it be there any help from your system, or can it be there any possible help from Power BI system by itself? Where as and how we just put simply, we will just simply drag the details and system itself will create, or say system itself will provide us of some information. Is it there any help like that? Yes, there are. Today we'll be finding out that also. Here you will see there are some information. See, okay, like this KPIs. Now this KPI as and how. Okay, this KPI. How to use it KPI? Let's say for example, we have sales. Total number of sales that has been done. This is the sale that has been done till now. Now we are breaking it, let's say over a period. Over a period. Let's say over a date, order date. This is your order date. So this is your order date. But this order date is each and every order date that has been done over here. Order date, isn't it? So we'll say as a date hierarchy. We don't want each and every continuous data नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए? Specific years, specific year का ही detail चाहिए. So we'll understand. Now let's say ये आपका chart आ गया. But based on this chart, we cannot understand what exactly is there, isn't it? We cannot understand that what exactly has happened over here. It simply says कि जैसे line chart है. Line chart में क्या होता है? This is 2014 sales. This is 2015 sales. This is 2016 somewhere in between, and then 2017. This is overall the same chart that has been created by line chart. There's no difference over here. For KPI, आप जब भी KPI यूज करते हो, ओके, जैसे लाइन चार्ट में क्या होता है, एक वैल्यू होता है एक्स एक्सिस पे और एक होता है वाई एक्सिस पे, ये दो ही चीज होती है. मगर हम जब KPI यूज करते हैं तो KPI में एक चीज और ऐड करना होता है, वो है टारगेट. सो
whenever you are going to use KPI, KPI works to have a KPI works only when you have a reference to any target. बेस्ड ऑन दैट टारगेट हम डिस्कस करते हैं कि भाई हमारा जो भी यहाँ पे वर्कआउट हो रहा है, फिर जो भी वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन या परफॉर्मेंस, बेसिकली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जैसे कहते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस किस तरह से चल रहा है। यहाँ पे किसका क्या परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, वी आर हियर टॉकिंग अबाउट सेल्स, दिस इज अवर परफॉर्मर, सेल्स हमारा परफॉर्मर है। कैसे, बेस्ड ऑन ईयर्स, बेस्ड ऑन ऑर्डर रेट पे ईयर की बात कर रहे हैं। तो 2014 से 2017 तक का जो भी जर्नी था, उसमें हमारा सेल्स का परफॉर्मेंस कैसा था, ये हम चेक कर रहे हैं। आपको तो ये तो पता चल गया, इट वाज लाइक दिस, ये एक तो पता चल गया, ठीक है, दैट इज फाइन। बट ये परफॉर्मेंस कैसा है, 2014 में 2015 से लेके 17 तक का पूरा टोटल परफॉर्मेंस है। लेकिन आप जब कोई टारगेट सेट कर देते हो, सो बेस्ड ऑन दैट टारगेट वी आर गोइंग टू कंपेयर, isn't it? Until unless you have the target, we cannot understand. Let's say we cannot say कि भाई 2014 में किस तरह के था, किस तरह का उसका परफॉर्मेंस था, 15 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 17 में किस तरह हुआ है, we cannot differentiate. So for that, whenever you are going to use KPI, you have to get some target over here. Again, अभी टारगेट कहां से लेंगे, isn't it? इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से मेजर यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, फिर से मेजर अगेन। ओके, नाउ इस टारगेट को आप दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, सेल्स को उठाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पुट कर देता हूँ। क्या किया मैंने, यहाँ से सेल्स को उठाया और सेल्स को यहाँ पे पुट कर दिया ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0% आ रहा है और यहाँ पे गोल है। अब गोल आपका क्या है, सम ऑफ सेल्स, टोटल अचीव हो गया है, क्योंकि ये अचीव हुआ है ना। तो देखो आपको क्या हो, यहाँ पे 0% कुछ मतलब उसका कुछ एडवांटेज तो नहीं है, मतलब उसका आपने आउट परफॉर्म नहीं किया। 0% मतलब क्या, देयर इज नो आउट परफॉर्मेंस। ये प्लस में कब होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका सेल्स 700 था, तो क्या होगा, उसके ऊपर में आपने 33 ज्यादा किया ना, कितना परसेंट ज्यादा किया, तो दैट परसेंटेज विल बी आउट परफॉर्मिंग। बट यहाँ पे क्या है, सेम है, तो यहाँ पे 0% आपको आया, प्लस साइन में कुछ भी नहीं आया। ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, जैसे 733 अभी आया, अगर यही चीज 700 होता तो कितना डिफरेंस है, 33 का है ना, तो वो डिफरेंस आपको नेगेटिव में दिखता, देयर इज ओके। हम दोनों, मैं आपको दोनों दिखाता हूं, बट एनी हाउ द थिंग इज, ये क्या बता रहा है आपको कि भाई जो आपका परफॉर्मेंस का वैल्यू था दोनों मैच हो गया है, जो आपका टारगेट था वो दोनों मैच हुआ है। बट हमें वैसा नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स से मैं इसको समराइज में ना यहाँ पे सम की जगह एवरेज कर देता हूँ। सी, जैसे ही मैं उसको एवरेज में करता हूँ, अब इसका एवरेज देखो, एवरेज क्या हो गया, हम जब बात करते हैं, अच्छा मैं इसको दूसरे कार्ड में आपको दिखाता हूँ, कार्ड में हम इसको, सॉरी, कार्ड में क्या करें, कंपेयर कर पाएंगे, इज इट। सो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक नया विजुअल यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस। इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज सेल्स की बात करते हैं, कितना है एवरेज सेल्स, दिस इज योर एवरेज सेल, ये सम सेल है। मैं इसका एग्रीगेशन चेंज कर देता हूं, अल से एवरेज, ये है आपका एवरेज सेल। ओके, अब विथ एवरेज सेल यू कैन सी दिस और वैल्यू, ये एवरेज सेल है। हमारा टोटल सेल कितना हुआ है, ऑब्वियसली इतना हुआ है, और ये एवरेज सेल है। तो इस एवरेज सेल से, एवरेज सेल से कितना ज्यादा हमारा 733 हुआ है, वो कितना ये है, दैट इज 33,000, 3,31,100%, इतना परसेंटेज ज्यादा है, इतना ज्यादा आपका सेल हुआ है, जितना गोल था उससे कहीं ज्यादा आपका सेल हुआ है, ये आपको इंडिकेट करता है। दिस इज हाउ अ केपीआई वर्क्स। इट शोज दैट, यहां से देखिए, आप यहां पे देखोगे ओवर पीरियड जो भी आपका ट्रांसफर हुआ है, जो भी आपका आगे जाके फॉर्मेट हुआ है, आगे जाके जो भी मूवमेंट हुआ है डेटा में, आप देख सकते हो कि 2014 से 2017 के बीच में जो आपका गोल था, जो आपका एक गोल था, उस गोल से कहीं गुना ज्यादा आपको आउटपुट मिला। ओके, लाइक दैट। लेट्स से अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं। आई क्रिएट वन मेजर, लेट्स से सेल्स पे क्लिक करता हूं, आई क्रिएट वन मेजर, बट दिस मेजर विल हैव टारगेट विच इज मोर, है ना। हम इसको थोड़ा टारगेट को बढ़ा देते हैं, तब क्या होता है वो देखते हैं। मेजर यहाँ पे ले लिया मैंने। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, लेट्स से ऑर्डर्स टेबल में से जो करंट सेल है, ओके, उसको कर देता हूँ इनटू, लेट्स से ट्वाइस ऑफ इट, ये कर देता हूँ। मेरे पास ट्वाइस का था मेरे ख्याल से ना, मैक्स करके मेरे ख्याल से हमारे पास में था, इसको लगता है नहीं किया तो भी चलेगा फिर। मैक्स वाला है ना, इसी को यूज करते हैं। चलिए, मेजर क्रिएट हो गया है क्या, इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो ये मेजर कुछ लॉजिक नहीं बनता ना, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस मैक्स को यूज करेंगे। ओके, लेट्स से मैं इसको हटा देता हूँ, अब यहाँ से मैक्स को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। देखो ये आगे नेगेटिव में, नेगेटिव में क्यों आया है,
लेट मी शो यू विद द कार्ड। मैक्स को उठाता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे। हाँ मिलियन, ये थाउजेंड्स में है, ये मिलियन में। ओके, इसका मैं आपको वैल्यू भी, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कॉल आउट वैल्यूज पे हम क्या कर देते हैं, ऑटो नहीं करेंगे उसे, थाउजेंड्स में, सबको थाउजेंड्स में करेंगे, या फिर नन कर देते, फिलहाल जो है वो दिखाइए। इसको भी नन कर देंगे हम, जो है वो दिखाइए, दैट इज दिस वैल्यू। और इसका भी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें। ओके, सीरियस नाउ, द थिंग इज, earlier earlier your target was this 229.86, that is sale, that much of sale only। तो उससे ज्यादा तो देखो क्या भाई, 7,33,215 तो बहुत बड़ा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या आया था, पॉजिटिव आया था, और इसमें प्लस साइन करके कितना है, वो पॉजिटिव दिखा रहा था, कितने परसेंटेज, 3,333 समथिंग लाइक दैट। बट यही चीज अभी निगेटिव में क्यों होगी, बिकॉज योर टारगेट, यहाँ पे कितना टारगेट है, 7,33,215, यहाँ पे क्या है देखो, 45,94,000 है। मतलब क्या हो गया यहाँ पे आपका, जो भी ये तिगना तुगना उतना आपका सेल्स का आपका एक्सपेक्टेशन है, मैच हो पाया नहीं हो पाया, तो कितना हुआ है करंट, ओनली 50% अचीव हुआ है। दैट इज व्हाट इट इज शोइंग। तो कभी भी टारगेट अगर आपके पास में है, ओके, कभी भी विजुअल आपके आपके इस डेटा में कभी भी आपके पास में अगर टारगेट है, तो बेस्ड ऑन दिस टारगेट आप आपके विजुअल के थ्रू डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह मूवमेंट हो रहा है, और क्या कितने परसेंटेज से हो रहा है, क्या गोल है आपका, और अभी तक क्या अचीव हुआ, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है। रहा पीछे का जो बैकग्राउंड है, दिस बैकग्राउंड इज रिगार्डिंग लाइन चार्ट। अगर आप इस चीज को, यही इनपुट को अगर आप लाइन चार्ट से बनाओगे, जैसे यहाँ पे मैं लाइन चार्ट सेलेक्ट करता हूँ, इफ आई ऐड लेट्स से सेल्स, ये सेल्स की वैल्यू है, ओके, एंड और डेट, डेट का आ गया अपना, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट ये आ गया। इसको मैं क्या कर देता हूँ, डेट, ये देखो, सेम विजुअल, ओके, जो यहाँ पे आपको विजुअल दिख रहा है ये वाला, लाइक दिस, सेम विजुअल हो गया, तो वही वहां पे दिखता है। सो इन बैकग्राउंड इट इज शोइंग द लाइन चार्ट ओवर हियर, रिप्रेजेंटिंग व्हाट एग्जैक्टली इज बीन डन, ये आपको दिखता है यहाँ पे, ओके। ऐसा आपको ये केपीआई रीड करके बताता है। ओके देन, डेट भी है, अगर आपको शोकेस करना है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ओके, ये ऐसे डेट है, कौन से डेट के टिल नाउ जो भी डेट है उसको भी बता के आपको बता सकते हैं यहाँ पे। देखो, जो ये जो दिखाता है आपको प्लस साइन, ग्रीन साइन जो मार्क दिखाता है, गुड कलर इज फॉर ग्रीन, न्यूट्रल इज फॉर ऑरेंज, एंड रेड इज फॉर बैड कलर, सो हियर इट इज बैड कलर, ओके। क्योंकि देखो ये पे मैं भी क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और जो अपना ये, इसको रहने देता है यहाँ पे ट्रेंड, ट्रेंड एक्सिस, और इस मैक्स सेल को हटा के यहाँ पे मैं एवरेज, एवरेज जो था अपना करंट, करंट PQRS, करंट सेल्स, दिस वन, ओके, देखो ये दिखा देते हैं, सो गुड वन, इस तरह से दिखा देता है। सर डिलीट दिस वन, ये बाकी की चीज जरूरत नहीं है, सर जस्ट डिलीट दिस वन। नाउ इस तरह के केपीआईज, ओके, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरह, ऐसे ही और कौन से हमारे पास में है, वी हैव अदर्स आल्सो। फॉर एग्जांपल केपीआई की जगह अब मैं लेता हूँ से ये की इन्फ्लुएंसर, ये भी एक है, ये भी अच्छे तरीके से बहुत काम करता है, इट इज ऑल्सो मोस्टली यूज्ड, इसका भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है यूज करने में, जैसे केपीआई वैसे तरह, ओके।
लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी देखो इनपुट कौन सा है। ओके यहाँ पे इनपुट राइट साइड में देखोगे इनपुट कौन सा है। लेट्स से फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन बाय और एक्सपांड बाय क्या होता है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझ लो कि एनालाइज क्या है, आपको एनालाइज क्या करना है पहले वो बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, एनालाइज सेल्स के बारे में एनालाइज करना, ये दे दिया। देखो व्हाट इन्फ्लुएंस सेल्स इंस्टेंटली, आपको एनालाइज करना है व्हाट इन्फ्लुएंस सेल्स, इंक्रीज करने के लिए डिक्रीज करने के लिए, दो चीजों के लिए आपको चेक करके देगा। अच्छा ठीक है, नाउ दिस सेल्स व्हाट यू वांट एक्सपांड बाय, किस हिसाब से आपका एक्सपांड यहाँ पे करना है। लेट्स से मैं कैटेगरी उठाता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कर दिया यहाँ पे। सी इट इज रनिंग एनालिसिस, रनिंग एनालिसिस करके बताता है कि भाई इफ अगर आप सेल्स के बारे में बात करते हो और आप देखना चाहते हो, सो ये जानना चाहते हो कि अगर इंक्रीज होने की बात होगी सेल्स, अगर आपको कहीं आगे फ्यूचर में फिर कहीं भी अगर सेल्स का आपको इंक्रीमेंट कराना है तो आपको क्या करना होगा। सो व्हाट इन्फ्लुएंस सेल्स टू इंक्रीज, इफ यू वांट टू इंक्रीज द सेल्स, द एवरेज सेल्स ऑफ द एवरेज ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड बाय कितना होता है 273.4, कितना, दिस इज द वैल्यू। ओके बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेट परसेंटेज, दिस इज वैल्यू, दिस मच ऑफ यूनिट, कितना 18% से। ओके आपको जो पॉइंटर है आपको टूल टिप में दिख रहा होगा, देखो व्हेन कैटेगरी इज टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली आपको पता है सब कैटेगरी में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा सेल आउट हुआ है। अगर आपका कैटेगरी टेक्नोलॉजी है, द एवरेज सेल इज 273.7 यूनिट हायर देन कंपेयर टू whom, कंपेयर टू ऑल अदर वैल्यूज, बाकी जितनी भी वैल्यूज है उससे हम कंपेयर करते हैं तो दिस इज 273.37 यूनिट्स हायर than other categories. This influencer contains approximately 18.48 परसेंटेज के साथ में बताता है बाकी से कंपेयर करके कि अगर कोई भी चीज अगर आप टेक्नोलॉजी के इसमें बेचोगे कैटेगरी में तो देयर आर चांसेस ऑफ योर हायर इंक्रीमेंटल इन सेल्स, दिस हाउ इट शोज। ये दिखाता नहीं है हर बार, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ देखो ना आउटपुट देने के बाद में जब ब्लू नहीं है, नहीं है तो दिखेगा नहीं, आपको इस पे क्लिक करना होगा तो वो ब्लू करके दिखेगा। ओके लाइक दैट इट विल शो। ठीक है, अब आपको ये तो पता है लॉसेस किस में हुए थे, इजंट इट, सब में हुए थे, बट एनी हाउ फर्नीचर जो था उसमें सबसे ज्यादा था। अब डिक्रीज के बारे में पूछते हैं, लेट्स से सेल्स। ओके नाउ इट सेज इफ ऑफिस सप्लाईज, ओके हाँ ये सेल्स का है ना, प्रॉफिट का नहीं है, ये सेल्स का है। तो आपको याद होगा देखो कि फर्नीचर का सेल्स अच्छा है, टेक्नोलॉजी का सेल्स है, लेकिन ऑफिस सप्लाईज का है जो सबसे कम सेल्स होता है। सो हियर यू कैन सी सेल्स इज मोर लाइकली टू डिक्रीज व्हेन कैटेगरीज ऑफिस सप्लाई देन अदर ऑन एवरेज। ये जो एवरेज है एवरेज लाइन उससे नीचे देखोगे तो ठीक है, फर्नीचर और टेक्नोलॉजी को छोड़ के ऑफिस सप्लाईज का है तो वो सबसे बुरा परफॉर्मेंस है, ये आपको इंडिकेट करके दे देगा। आपको और ब्रेक डाउन करना है कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसी को फर्दर में अगर चाहो, इसी को फर्दर एक्सप्लेनेशन में चाहो तो लेट्स से मुझे सेगमेंट के बेसिस में चाहिए, मैं एक्सपांड बाय कर देता हूं। Okay. Region, I think when analyze is not summarized, the analyzing always run through run बराबर है is of its parent, changing the level y expand field not allowed। ठीक है, either you choose this, वो भी नहीं होगा ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इससे सेगमेंट को उठाता हूँ और इसको यहाँ पे उठा के यहाँ रख देता हूँ उसी के नीचे फर्दर। जब वो जितना से दिखेगा, ओके लाइक दिस। अब उसी के ऊपर में देखो ये हो गया आपका की इन्फ्लुएंसर। अब इसी में टॉप सेगमेंट्स में आपको देखोगे तो ये पता चलेगा सही। ओवरऑल टॉप सेगमेंट्स में आप देखोगे तो वी फाउंड 3 सेगमेंट्स, बिकॉज अभी हमने सेगमेंट का यहाँ पे ऐड कर दिया ना कैटेगरी के बाद में। सो यहाँ पे आपको पता चलता है कि वी फाउंड 3 सेगमेंट्स एंड रैंक्ड देम बाय एवरेज सेल्स एंड पॉपुलेशन साइज।
सेलेक्ट सेगमेंट टू चूज। आप कोई भी आप सेगमेंट सेलेक्ट कर लो, फॉर एग्जांपल जैसे क्लिक कर लेते हो तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। उसके बारे में क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो आ जाएंगे। जैसे सेगमेंट वन की हम बात कर रहे हैं, सेगमेंट वन क्या है? कैटेगरी इज ऑफिस सप्लाईज, सेगमेंट इज नॉट कॉर्पोरेट नॉट कंज्यूमर। इन दिस सेगमेंट द एवरेज सेल्स इज अराउंड this is 114.5 units lower than on average sales। एवरेज सेल जो उससे भी कम है, ये कितना कम है? ओवरऑल दिस मच यूनिट लोअर। जो एवरेज कितना है 229 है, उससे भी ये कम है। सो सेगमेंट वन कंटेन्स 179 डेटा पॉइंट्स। कितने आपके रिकॉर्ड्स है? ये रिकॉर्ड जितने हैं, जितना कि 10.8% ऑफ ओवरऑल डेटा सेट में से परसेंटेज कितना है वो बता देता है। अगेन द सेकेंड सेगमेंट, सिंस दिस वाज ऑफिस सप्लाईज, तो ऑब्वियसली ये नहीं रहेगा, ये आएगा तो ऑब्वियसली वो नहीं रहेगा, नीचे आ जाएगा। सो कैटेगरीज ऑफिस सप्लाईज। ओके, हाँ। एंड सेगमेंट इज कंज्यूमर। ऑफिस सप्लाईज में हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर की, तो उसके बारे में डिटेल्स लाइक दिस, सेम ऑफिस सप्लाईज एंड कॉर्पोरेट, इस तरह से। बिकॉज when the sale more likely to low, if I say high, तो ये आउटपुट अलग हो जाएगा। इन दिस वे नाउ, ये जितने भी आपको विजुअल जो भी इनपुट यहां से मिल रहा है ना, ये आपने नहीं बनाया है, रादर हमने उसमें कुछ भी इन्वोक नहीं किया है कि कौन सा कैटेगरी है, क्या बनाना है, कौन सा कॉलम यूज करना है, कौन सा चार्ट, नहीं है। It simply helps you to create analysis. It simply highlights the detail which are not been seen by you, which are not been observed by you. वो कैसे? पूरा AI के हेल्प से होता है। Okay, so use this also as an analytical aspects। ये है सब AI के रिलेटेड में आपको चार्ट से डिटेल्स मिलते हैं। ये एक है जैसे मैंने आपको बताया, वैसे ये भी है API वाला। अगेन और भी है हमारे पास में। ओके, अभी इसके बाद में एक और है, देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ट्री। डिकम्पोजिशन ट्री क्या करता है? देखो, एनालाइज करता है, अगेन जो पिछले पे हमने देखा था, एनालाइज करता है एक्सपांड बाय विद टूल टिप्स। अब एनालाइज क्या करना है मुझे एनालाइज करना है सेल्स को। नाउ एक्सपांड बाय व्हाट? एक्सपांड बाय कैटेगरीज। ओके, तो देखो प्लस साइन यहाँ पे आ गया। क्या हो गया? यहाँ पे प्लस साइन आ गया। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो प्लस साइन खत्म, क्यों? एक ही वैल्यू है, एक्सपांड के लिए कुछ नहीं है। ऐड कर दो, यहाँ पे प्लस आ गया। फर्दर अगर मुझे और एक्सपांड करना है तो मैं और कर सकता हूँ, जैसे कैटेगरी को मुझे सब कैटेगरी से करना है, यहाँ से उठा के मैंने उसके नीचे डाल दिया, सब कैटेगरी नीचे, हायरार्की जरूरी है, सब कैटेगरी नीचे डाल दिया। ओके, नाउ अब मेरा क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पे मैं प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, देखो ऑप्शंस मिलते हैं। व्हाट यू वांट? सम ऑफ सेल्स में क्या हाई वैल्यू चाहिए, लो वैल्यू चाहिए, कैटेगरी चाहिए या सब कैटेगरी चाहिए? ओके, ये आपका क्वेरी में से आपको जो सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ सम ऑफ सेल्स में हाई वैल्यू, सो द हाईएस्ट वैल्यू ओवर हियर, क्योंकि कैटेगरी पहला है ब्रेक एक्सप्लेन बाय, एनालाइज में क्या है सेल्स, पहले कैटेगरी से होगा। इसमें फिर से पे प्लस क्लिक करूंगा और क्या होगा? अभी देखो सब कैटेगरी है, क्योंकि नेक्स्ट क्या है ब्रेक आपका? एक्सप्लेन बाय में सब कैटेगरी है। लेट्स से हाई वैल्यू, तो यहाँ पे पता चलता है कि भाई जब आप सम ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हो या फिर डिस्कस करते हो या फिर एनालिसिस करते हो सम ऑफ सेल्स के बारे में, तो उसमें सबसे ज्यादा है किसने कैटेगरी? टेक्नोलॉजी कैटेगरी का है। अच्छा, उस टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा किसका है प्रोडक्ट का? तो वो फोन्स का है। इस तरह से आपको वो फर्दर ब्रेक करके देगा। इसमें आपको फर्दर ब्रेक करना है तो आपको रीजन उठा सकते हो आप, रीजन उठाओ उसके नीचे डाल दो, यहाँ पे देखो प्लस साइन आ गया, ये हटा दो, ये पहले नहीं था, रीजन ऐड कर दोगे प्लस साइन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्लस हाई वैल्यू, अब नेक्स्ट क्या आएगा ब्रेक करने के लिए? रीजन ही है, तो रीजन, तो सबसे ज्यादा ईस्ट रीजन में सेल आउट होता है फोन्स का। इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन ब्रेक डाउन करके मिलती जाए, जितना आप ऐड करते जाओगे यहाँ पे एक्सप्लेन बाय, वो उतना डिटेल्स आपको ऐड करके मिलता जाएगा। जैसे आप क्लोज करते जाओगे, ये देखो ऐसे क्लोज करते हुए, तो आपको वही चीजें मिल जाएगी। नाउ लेट्स से आपने क्या किया, प्लस साइन पे क्लिक किया और अब मुझे ना ये सब कैटेगरी, डायरेक्ट में सब कैटेगरी में आता हूँ। ओके, ये क्या करूंगा मैं? सब कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, देखो ये सब कैटेगरी पूरा डिटेल्स आ गया, पूरा डिटेल्स। सेट दैट, अब प्लस लो वैल्यू रीजन का, प्लस कैटेगरी, ऐसे। तो सम ऑफ सेल्स फोन की जब बात करते हैं ईस्ट रीजन में टेक्नोलॉजी का कैटेगरी से बिलोंग करता है, इस तरह से भी डिटेल्स आ सकता है। अब यहाँ पे देखो उसका पूरा हायरार्की चेंज हो गया, पहले कैटेगरी था फिर सब कैटेगरी रीजन था, लेकिन यहाँ पे चेंज क्यों होगा? कि हमारे चॉइस पे
हमारे चॉइस के बेसिस में क्या हुआ, वो कॉलम को यहाँ पे चेंज करता है। इसको वापस से क्लोज करके देखो तो वो वापस वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखो, जैसे कंट्री था यहाँ पे था, ये डिटेल्स चेंज हो गया है। इसको वापस से यहाँ ऐसे कर देते हैं। फिर से आपको चेंज करना है, जैसे मुझे डायरेक्ट रीजन में जाना है तो वो भी आ सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वैसे भी जंप कर सकते हो, वापस से क्लोज कर दो। क्लियर है? यस सर। एक और है क्वेश्चन एंड आंसर, Q&A जिसे हम नॉर्मली कहते हैं। दिस इज यूजिंग हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। ओके, NL जिसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज, उसका प्रोसेस यहाँ पे ये करता है। अभी कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या करता है, टॉप लेट्स से FAQ क्वेश्चंस जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो होते हैं FAQs, उसको वो लिस्ट आउट करता है और आपको वो चूज करने को कहता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, टॉप स्टेट्स बाय मैक्स सेल्स, मतलब क्या करेगा, जितने भी सेल्स है मैक्सिमम सेल्स उसके स्टेट्स के हिसाब से आपको करके दे देगा। व्हाट इज मैक्स सेल्स बाय कस्टमर नेम, सबसे ज्यादा कस्टमर ने कौन से कस्टमर सबसे ज्यादा सेल आउट किया है वो डिटेल्स। टॉप सेगमेंट बाय टारगेट सेल्स, ये आपको टारगेट सेल के हिसाब से। टॉप कस्टमर नेम बाय मैक्स सेल्स। टॉप ऑर्डर कैटेगरीज बाय मैक्स सेल्स। तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क या फिर जो नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे लेट्स से ये वाला क्लिक, इसको हो गया, इसको मैं एंटर कर देता हूँ, वेट कर रहे हो कि इट्स प्लानिंग टू वर्क ऑन। देखो ये आ गया डिटेल्स, डिटेल्स आ गया आपका। कैसे, यू हैव आस्क्ड टॉप ऑर्डर कैटेगरीज, ऑर्डर कैटेगरी मतलब ऑर्डर्स टेबल में से कैटेगरीज को बाय मैक्स सेल। मैक्स सेल कौन सा है भाई, टेक्नोलॉजी का, फर्नीचर का है, और ये तीन कैटेगरी आपको डिटेल्स आ जाएंगे। नाउ दिस डजंट एंड्स ओवर हियर, ये इतना में खत्म नहीं होता है। ये क्या है, आपने एक जो फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस थे उसमें से क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया, isn't it? और उस पे हमने सजेशन दिया है कि दिस इज हाउ द आउटपुट विल लुक लाइक। इफ यू एग्री विद दिस, इफ यू एग्री विद दिस, आपको यहाँ पे जो आउटपुट है यहाँ पे सेलेक्ट, ये जो ऑप्शन है इस पे सेलेक्ट करना होगा। ये ऑप्शन क्या है, it changes or it's a, this turns Q&A results into standard visuals until and unless you save it okay as an standard। तो ये रहेगा नहीं, क्योंकि क्या है, कल जाके अगर आप इसमें क्वेश्चन चेंज करोगे या फ्रीक्वेंसी या इसका जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन चेंज करोगे, विजुअल चेंज हो जाएगा। इट विल नॉट बी a stable visual। To make it as a stable visual which will not change, you have to click over here and then it will become visual as a stable। जैसे मैं क्लिक करता हूं, देखो यहाँ पे, ये देखो अब हो गया ये। ओके अब हो गया ये Q&A। अब ये Q&A नहीं रहा, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप। नाउ इट इज अ सिंपल बार चार्ट वेयर यू आर यूजिंग सेल्स विद कैटेगरी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ वापस Q&A में। तो आपको फिर से Ctrl Z करो, या तो इसे आप नए Q&A विजुअल्स को एक्टिवेट करो। इसको वापस से नहीं कर सकते, ओके, Ctrl Z के अलावा वापस से नहीं कर सकते। सो मैं इसको क्या करता हूँ, अंडू कर देता हूँ ताकि रहे वहां पे। ये एक तरीका है आपके डेटा सेट में रखने का, या फिर आपके विजुअल्स में इसको ऐसे ही मेंटेन करके रखने का एक तरीका है, जहां पे आप कस्टमर को इंटरेक्ट कराने को, उनसे मतलब एक इंटरेक्शन करने का ऑप्शन रख सकते हो कि भाई आप आपके यहाँ पे क्वेरीज टाइप करो। लेकिन क्वेरीज टाइप करने का ना एक मेथड है। ओके, जैसे मुझे चाहिए अपने मन से लिख दिया ऐसा नहीं होता है, उसका एक पर्टिकुलर मेथड है। मेथड में क्या करना है, कभी भी देखो, यू हैव टू आस्क बेस्ड ऑन टेबल नेम। ये टेबल नेम आपके क्वेरी में आना ही चाहिए, और टेबल नेम के साथ में कॉलम नेम बहुत जरूरी है। कौन सा टेबल है, कौन सा कॉलम है, और करना क्या है, सम, एवरेज, जो कुछ भी है वो थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, देन इट विल अंडरस्टैंड। अदरवाइज क्या होगा, समझ नहीं पाएगा। जैसे मैं क्या चाहता हूं,
ऑर्डर्स टेबल में जो सेल्स है ना उसका मुझे एवरेज चाहिए। ऑर्डर्स जो डेटा है, ऑर्डर्स सेल्स, ओके, उसका मैं क्या चाहता हूं, एवरेज, एवरेज ऑर्डर सेल्स, ये उसका आंसर आ गया। ओके नाउ अब मैं क्या चाहता हूं, ए जी, एवरेज ऑर्डर सेल्स बाय कैटेगरी। अब कैटेगरी दो जगह पे है, ऑर्डर्स कैटेगरी, ये देखो। क्या क्या मैं देखो, एवरेज ऑर्डर्स सेल्स बाय ऑर्डर्स कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी दो जगह पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, दो जगह पे था, एक आईएमडी में भी है और एक अपने ऑर्डर टेबल में भी है। तो उसने इंस्टेंटली बोल दिया कौन सा टेबल मुझे बताओ। फ्रॉम दैट वी हैव, इसलिए हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई ऑर्डर्स में से कैटेगरी का दो, तो ये एवरेज सेल से देखो, दिस एवरेज सेल, एवरेज सेल इन टेक्नोलॉजी, एवरेज सेल इन फर्नीचर, एवरेज सेल्स इन ऑफिस सप्लाईज। तो इस तरह से क्या है, आपको क्यूएनए क्वेश्चन एंड आंसर खुद हेल्प करेगा विजुअलाइजेशंस के साथ में, जो भी आउटपुट आपको निकालना है, इट विल हेल्प यू दैट। तो जितने भी यहाँ पे आपको ये विजुअल से, ये सब क्या है, एआई पावर्ड, एआई के साथ में जितने भी विजुअल्स यहाँ पे उनको क्रिएट करने का आपको यहाँ पे अच्छा खासा एक एग्जाम्पल मिलता है। क्लियर है गाइस? यस सर। ओके नाउ लेट्स से मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ कॉलम चार्ट पे, चार्ट, ये चार्ट, ओके, ठीक है, आते हैं। लेट्स से मैं एक चार्ट बनाता हूँ अभी। उस चार्ट में क्या है, सेल्स बेस्ड ऑन कैटेगरी एंड देन लेजेंड बाय रीजन, चार रीजन है, चारों का सब। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, ओके। ये हो गया आपका एक विजुअल। मैं एक दूसरा विजुअल बनाऊंगा, लेट्स से लाइन चार्ट, जिसमें कि मैं ये चाहता हूँ देखने के लिए कि सेल्स ओवर अ पीरियड, ओवर अ पीरियड, और कैटेगरी ऊपर है ना, कैटेगरी में कैसे चल रहा है, लेजेंड, and I'll change this into hierarchy. ओके अब जब बात आती है कि भाई किसी भी यूजर को, आपको, मुझे, या कोई भी हो यूजर, हो एंड यूजर हो या कोई भी हो, तो मुझे अगर चार्ट के साथ में इंटरेक्ट करना है, ओके, चार्ट्स के साथ में मुझे जब इंटरेक्ट करना है, तो इंटरेक्शन के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, ओके। इंटरेक्शन मतलब क्या, मैं मेरे हिसाब से अगर चार्ट में कुछ चीजों को फाइंड आउट करना चाहो, फिल्टर करना चाहो, उसे ब्रेक करना चाहो, तो क्या मैं कर सकता हूँ? यस, कर सकते हो आप। कैसे करोगे, देखो, वी हैव समथिंग कॉल्ड स्लाइसर्स। ओके, मैं क्या करता हूँ, देखो, स्लाइसर को यहाँ पे ओपन करता हूँ, दिस आवर स्लाइसर, ये स्लाइसर है। इस स्लाइसर के थ्रू मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी भी मेरी कैटेगरी है ना, मैं उसको एक्सेस कर सकूँ। ये एक्सेस आ गया आपका, ओके, कैटेगरी का। अब मैं इस डेटा में, इस सिलेक्टेड स्लाइसर में मैं इसको थोड़ा एडिटिंग करना चाहूंगा, ओके। सो सेलेक्टिंग दैट, आई गो फॉर फॉर्मेट, गैदर्ड ऑप्शन, स्टाइल्स में, ठीक है, पोजीशन वगैरह तो ठीक है, पैडिंग भी ठीक है। बैकग्राउंड में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कलर अलग आ जाए इस तरह से, और मैं उसको हाईलाइट कर दूँ फॉन्ट को, ये ठीक है अपना बैकग्राउंड। बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, एंड शेडो भी नहीं चाहिए मुझे। देन जो टाइटल्स है मैं उसको ऑन रखूंगा यहाँ पे, टाइटल छोड़, टाइटल कैटेगरी है वो नहीं चाहिए हमें, टाइटल भी नहीं चाहिए। लाइसर सेटिंग्स, मुझे चाहिए टाइल्स, टाइल्स मतलब इस तरह से टाइल्स आ जाएंगे आपके, ये ठीक है अपना। हाँ, ना वी हैव थ्री ऑप्शंस ओवर हियर। अब यहाँ पे देखो, मल्टी बाय डिफॉल्ट, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी स्लाइसर आप यूज करते हो ना, तो मल्टी सेलेक्ट
ये जो मल्टी सिलेक्ट होता है ये सिलेक्टेड होता है, मल्टी सिलेक्ट ये हमेशा सिलेक्ट ऑन होता है बाय डिफॉल्ट। मल्टी सिलेक्ट मतलब क्या, मैं अगर चाहूँ फर्नीचर पे तो मुझे फर्नीचर का डेटा दिखे यहाँ पे, तो देखो आपको सिर्फ फर्नीचर का डेटा दिखेगा, ये ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर का डेटा दिखेगा। राइट नाउ वी आर ओनली एंड ओनली इन फर्नीचर डिटेल्स। Okay, we are only on furniture details. Everything shown over here in the chart is of only furniture details, nothing other than that. If I select technology, technology. If I select office supply, office supply. But what if I want furniture and technology both? तो ऐसे केस में क्या है, आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये कब होता है, जब मल्टी सिलेक्ट ऑन रहेगा तो। इन फॉर्मेट यू हैव सीन इफ देयर इज दिस मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन सेलेक्टेड सेटिंग्स में जाके दिस वन, तो ही होगा। इफ आई से ऊपर वाला ऑप्शन कहां पे सिलेक्शन में, इफ आई से दिस वन, तो प्रॉब्लम क्या है, मैं कितना भी सिलेक्ट कर लूं मल्टी को मैं नहीं कर सकता। और मल्टी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक करो, जहां आपको चाहिए कंट्रोल प्लस जहां चाहिए क्लिक करो। देखो यहाँ पे नहीं होता है, मैं कितना भी ट्राई कर रहा हूँ कंट्रोल दबा के नहीं हो पा रहा है। आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज देयर इज ओनली वन ऑप्शन एट टाइम, यू कैन सिलेक्ट ओनली वन। बट इफ यू वांट टू मेक इट मल्टीपल्स, इसको ऑफ करना है और मल्टी सिलेक्ट को ऑन करना है। ओके, अगेन अगर अब इसमें देखो आपके पास में ऑप्शन है फर्नीचर टेक्नोलॉजी लाइक दिस मल्टीपल या फिर लाइक दिस। लेकिन अगर मुझे अभी जैसे सेलेक्ट नहीं करना है, एक 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 सेलेक्ट नहीं करना है, मुझे एक साथ सबको करना है, तो क्या है ऑप्शन होता है देखो आपको सेलेक्ट ऑल, तो ये एक साथ भी ऐसे सेलेक्ट करके कर सकते हो। ओके, ये होता है आपके पास अगर चाहिए तो। इसको देख लिया, फिर बाद में स्लाइसर हेडर्स। स्लाइसर हेडर में क्या है, कैटेगरी यहाँ पे दिख रही है आपको, कैटेगरी के डिटेल्स है यहाँ पे। देन यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरी को मुझे सिलेक्ट करना है, स्टाइल। वैल्यूज में बैकग्राउंड कलर, विजुअल बॉर्डर्स, शेडोज, टाइटल। टाइटल कैटेगरी नहीं चाहिए, it's all over here. Then मल्टीपल स्लाइसिंग के लिए ठीक है, तो स्लाइसर्स है नाउ विद दिस स्लाइसर्स इफ आई सेलेक्ट फर्नीचर, ये सब के सब चेंज हो जाएंगे। लेकिन आपने एक और चीज भी ऑब्जर्व किया होगा, मैंने ये स्लाइसर लगाया और ये स्लाइसर इस पेज में जितने भी विजुअल्स है, बिकॉज आप देख सकते हो सिर्फ एक विजुअल को नहीं कर रहा है वो, दोनों विजुअल से, तो दोनों में चेंजेस कर रहा है। लेट्स से कल जाके मैं एक और ऐड कर देता हूँ, लेट्स से मैं इसको इसको यहाँ पे सेट करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसलिए, ये एक विजुअल हमारा रहा, ये एक विजुअल यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं, तो भी छोटा कर देते हैं। और यहाँ पे एक और क्रिएट करते हैं, लेट्स से क्लस्टर्ड स्टैक कॉलम चार्ट करते क्रिएट। और यहाँ पे लेट्स से प्रॉफिट बेस कैटेगरी की बात करते हैं। Okay, देखो अब भले ही यहाँ पे आपको प्रॉफिट की वैल्यू दिख रही है, भले यहाँ पे क्या है, दिस इज रिगार्डिंग प्रॉफिट,
बट सिंस यू हैव सिलेक्टेड फर्नीचर, तो होता क्या है, एवरी विजुअल, whichever visual you are having over here, वो हर एक विजुअल में ना आपको सेम इफेक्ट दिखेगा. एवरीथिंग विल बी रिगार्डिंग फर्नीचर ओनली, एवरीथिंग. इसका मतलब है अगर ये स्लाइसर आप यहाँ पे लगाते हो, अप्लाई करते हो एक स्लाइसर को यहाँ पे इन दिस सिनेरियो, तो वो स्लाइसर सिर्फ एक विजुअल पे इफेक्ट ना करते हुए आपको सबके सब विजुअल पे इफेक्ट करेगा. So this effect is called slicer on this page. Slicer on this page, on overall all the pages. ये आपका on not all pages, but on for all the visuals in this page will be affected by this. एक visual आपके जितने भी visuals, ये जो एक slicer है, जितनी भी आपकी visuals है इस पेज में सब पे इफेक्ट करेगा. तो क्या ऐसा हमारे पास में कुछ ऑप्शन है कि मैं सेलेक्टिव विजुअल्स को ही मतलब प्रॉपर्ली स्लाइसर से इफेक्ट करा सकूं, या अगर मुझे कोई स्पेसिफिक ऐसा विजुअल है जिसके हिसाब से वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए तो मैं कर सकता हूँ क्या? यस, कर सकते हो. पहले इसको अंडू कर दो. अंडू मतलब क्या है? वो स्लाइसर को हटा दो. ओके, अंडू करने के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है क्लियर सिलेक्शन करके. ओके, यहाँ पे ऑप्शन होता है. इसको मैं ना बैकग्राउंड हटा देता हूँ. स्लाइसर सेटिंग्स, ऑप्शंस, हाँ. तो ये देखो, ये राइट साइड कॉर्नर में क्लियर सिलेक्शन, आपने कोई सिलेक्ट किया, उसको क्लियर करने के लिए क्लियर सिलेक्शन होता है, उस पर क्लिक करना है तो क्लियर सिलेक्शन होता है. ओके, ना अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, लेट्स से इस स्लाइसर में मैं जो भी सिलेक्ट करता हूँ, मुझे जो बीच का जो है ना ये लाइन, अपना लाइन चार्ट, इसमें उस स्लाइसर का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए. हाँ, भले ही आपके आजू बाजू स्लाइसर में जो बाकी जो विजुअल्स है उसको इफेक्ट करे चलेगा, बट आई वांट टू मेक कि ये जो है चार्ट ये न्यूट्रलाइज रहे. ओके, ये क्या रहे? न्यूट्रल रहे, इसमें कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस ना हो. इफ आई क्लिक ऑन एनी ऑफ दिस स्लाइसर, आई डोंट वांट द इफेक्ट ओवर हियर, अदरवाइज दोनों जगह पे हो जाए. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? So select the slicer. First, you have to select the slicer on what you want to apply. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल स्लाइसर होंगे, जैसे ये एक स्लाइसर हो गया आपका, मैंने क्या किया, एक और स्लाइसर यहाँ पे ओपन कर दिया और उसको क्या कर दिया भाई, अभी रीजन डाल देते हैं वहां पे. लेट्स से मैं यहाँ से रीजन उठाता, मैंने PQR यहाँ पे डाल दिया तो रीजन भी आ जाएगा. अब इसको मैं क्या कर देता, इसको स्लाइसर सेटिंग्स में इसको कर देता ऑप्शंस में वर्टिकल की जगह टाइट, ये भी आ गया टाइट. तो ऐसे मल्टीपल स्लाइसर हो सकते हैं ना आपके पास में. तो हो सकता है कि हाँ, मैं सेंटर पे क्लिक करूं तो यहाँ पे दिखना चाहिए, बाकियों को नहीं दिखना चाहिए. हो सकता है इन दिस वे कि स्पेसिफिक स्लाइसर स्पेसिफिक विजुअल्स के लिए हो, उसमें इफेक्ट दिखना चाहिए. तो कैसे करेंगे? तो लेट अस डू दैट. तो उसके लिए पहले स्लाइसर को सिलेक्ट करो. स्लाइसर को सेलेक्ट करो. स्लाइसर सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है कहां पे? व्यू. कहां पे जाना है? ऊपर व्यू पे सेलेक्ट करो. व्यू में सॉरी नॉट व्यू, फॉर्मेट. ओके, आपने क्या करना है, पहले स्लाइसर को सिलेक्ट करना है और ये जो टैब्स है, टैब्स में जाना है फॉर्मेट में. नॉर्मली फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखता है, बट जो टैब्स है ऊपर में, इसमें फॉर्मेट में जाना है. यहाँ पे फॉर्मेट में आने के बाद में देखो आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखता है एडिट इंटरैक्शन. क्या दिखता है आपको? फर्स्ट एडिट इंटरैक्शन. नाउ जस्ट फॉर अ मोमेंट थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, आपको यहाँ पे जितने भी विजुअल्स है ना, जितने भी विजुअल्स, इफ आई से सेलेक्ट दिस, तो देखो कितने ऑप्शंस मिलते हैं. अप डाउन, ये ना ऐसे अलग मिलते हैं, ये ऑप्शंस मिलते हैं. अप डाउन, ड्रिल डाउन, हायरार्किकल ड्रिल, फिल्टर लगा है कि नहीं, फोकस एंड 3 more dots for sorting and other things. Isn't it? There are options. ये सब चार्ट में सेम मिलेंगे. See over here also, है ना, ये चीजें मिल रही है. अब जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, इस चार्ट को, इस स्लाइसर को, बाकी इनको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, थोड़ा गैप रहने देते हैं ऊपर से, तो मिक्स हो रहा है एक दूसरे के बीच में, लाइक दिस, ये वाला. ओके, नाउ इफ आई सेलेक्ट दिस this slicer and if I go over format option on the top tab and if I select edit interaction, see the symbol it is added. ये देखो, दिख रहा है क्या आपको? नन नन नन, ये ऐड हो गया है. ये आपको जो जो स्लाइसर आपने सिलेक्ट किया है उसमें नहीं दिखेगा, जो आपने स्लाइसर सिलेक्ट किया है उसके ऊपर नहीं दिखेगा, लेकिन बाकियों में सब जगह दिखेगा. दिस मीन्स दैट विथ रेफरेंस टू द सिलेक्टेड स्लाइसर, लेट्स से मुझे इस स्लाइसर में इफेक्ट नहीं चाहिए, किसका? उस स्लाइसर का.
तो आई कैन क्लिक ऑन दिस नन ऑप्शन. दिस मीन्स दैट selecting any value in the slicer will not affect this visual. देखो, ये देखो, there is no effect. Or if I select this, there are all effects. But as and how if I select this one, there's no change. This means that if you're applying this none option, if you're let's say activating this none option, the slicer selected will not have effect on this visual. ये उसका ऑप्शन होता है. जैसे फिर से कंटिन्यू करेंगे हम, है ना, ये क्लियर कर देता हूं मैं. इसको लगा देता हूं, ठीक है, क्लियर करते हैं. अब मुझे ये जो विजुअल है इसका इफेक्ट कहाँ चाहिए? इसमें चाहिए, ये दोनों में नहीं चाहिए. मुझे इन दोनों में नहीं चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, नन सेलेक्ट करो स्लाइसर को, यहाँ पे आ जाइए, इस पे नन पे क्लिक कर दे, इसको यहाँ पे नन पे क्लिक कर दो, और देखो वेस्ट सिर्फ एक ही चीजों पे सेलेक्ट करेगा. सो दिस वे यू कैन ऑल्सो अप्लाई द इंटरक्शन टुवर्ड्स यूजर. जो कोई भी एंड में यूज कर रहा है उसको कौन से स्लाइसर से कौन से चार्ट पे उसको एडिटिंग या फिर इंटरेक्शन का ऑप्शन आना चाहिए वो आप चूज कर सकते हो. ऑल्सो दूसरा क्वेश्चन ये भी होगा, क्या मैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी ये जो मेरा चार्ट है, ओके लेट्स से फर्नीचर है, ये टेक्नोलॉजी है, ये जो जो भी मैंने स्लाइसर यहाँ पे अप्लाई किया है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं स्लाइसर यहाँ पे क्रिएट करूं और इसका इफेक्ट मुझे इस पेज 1 के अलावा ये कॉलम चार्ट में दिखे? क्या ऐसा हो सकता है? यस, ये भी हो सकता है. मतलब आप एक जगह पे आपका स्लाइसर बनाओ और उसी स्लाइसर से आप किसी और या फिर कहीं और जगह के पेजेस को भी आप वर्कआउट कर सकते हो. ठीक है, इसी फाइल में होना चाहिए, दूसरे फाइल में नहीं. इट शुड बी इन दिस फाइल ओनली, तभी होगा. लेट्स से मुझे क्या करना है, कॉलम चार्ट में इसको इफेक्ट करना है. ओके, उसी चीज को पहले तो मैं जाता हूं हमारे इस पेज में. ओके, इस पेज में आके क्या करता हूं, इस स्लाइसर को सिलेक्ट करता हूं. Selecting the slicer, okay, this selecting slicers, go on view option over here, go towards view option. View option में आगे आगे आइए आप, लास्ट साइड में देखो तो कुछ ऑप्शन है वहां पे. सिंक स्लाइसर करके ऑप्शन है. क्या है वहां पे? सिंक स्लाइसर. ये ऑलरेडी मेरे यहाँ पे जो राइट साइड पैनल है यहाँ पे अवेलेबल है. ओके, आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस सिंक स्लाइसर. ये आपको इस तरह से पेन ओपन करके देगा, फॉर्मेट वाला नहीं है, दिस पेन, सिंक स्लाइसर वाला पेन. ओके, अभी देखो, अभी ये स्लाइसर कहां पे है? पेज 6 पे है. देखो पेज 6 पे है ये. ओके, ये है. आई वॉन्ट कॉलम चार्ट. ये कॉलम चार्ट है, इस पे चाहिए ना. अच्छा, यहाँ पे दो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं. यहाँ पे आपको दो सिंबल दिख रहा है. देखो, एक गोल है जो सिंक को रिप्रेजेंट करता है और एक आई है, ये आपको विजिबल के बारे में दिखाता है. इसका मीनिंग क्या है? राइट नाउ द सेलेक्टेड स्लाइसर, right now selected slicer is on page 6. Do you want this selected slicer on page 6 to visible at column chart, on and sync that to also, मतलब sync भी करना है और visible भी दिखना है दोनों को, तो yes कर दो. अब देखो, मैं आपको यहां से लेके जाता हूं सीधे कॉलम के पेज पे. देखो यहाँ पे, देखो स्लाइसर आ गया. यहाँ पे पहले था क्या? ये नहीं था, ये आ गया. अब प्रॉब्लम क्या है, मैं तो ऑपरेट वहां से करने वाला हूं, तो ये स्लाइसर यहाँ पे देखिए क्या है, आपके जो विजुअल है इसको ओवरलैप कर रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए. कोई बात नहीं, आप क्या करो, वापस से आ जाओ उस पेज पे. यहाँ पे है ना आपने सेलेक्ट किया हुआ, ये आपको डिटेल दिख रहा है. जो सेकेंड ऑप्शन है विजुअल का, ये विजिबल का, इसको कर दो अनचेक. अनचेक करने से क्या होगा, वापस से जाके देखिए आपके कॉलम टेबल में नहीं है, वो नहीं है. लेकिन द पार्ट इज, if I go back to our page 6, see over here, over this slicer, it is visible. It is visible. अब अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फर्नीचर पे क्लिक करता हूं, क्या करता हूं, फर्नीचर पे क्लिक किया, देखो वो ब्लैक हो गया ना. देखो यहाँ पे इफेक्ट हो गया है. अब यहाँ पे भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है. क्यों नहीं आया, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ. अभी नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? देखो एक स्टेप रह गया है. इफ यू सी ओवर हियर इन दिस स्लाइसर, एक ऑप्शन देखो सिंक. ये सिंक को हमने सिर्फ वहां पे टिक किया है, यहाँ पे नहीं किया है ना. तो जो भी आप इस पेज में सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे सिंक होगा, पर आपने यहाँ पे अभी टिक मार्क करना है. तो यू हैव टू फोकस, यू हैव टू कंफर्म दैट दिस सिंक mark is ticked over here, checked over here and here, wherever you want to put there also. Once it is there, फर्नीचर पे क्लिक किया आपने, आइए वहां पे कॉलम पे, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर ही दिखेगा. This way you can use a slicer
which is created on one page, and that same slicer can be used for affecting other visuals on different pages or selective pages also. Is it clear, guys? Yes, sir. Okay. Said that विजुअल्स को आपको फिल्टर करना है, फिल्टर से भी आप यूज कर सकते हो. There are basically two filters at initial stage. At initial stage, you will see filter on this page and filter on all the pages. What does it means? It simply means that it simply means that if I select any of a feature from this orders table and if I put on this field, you know, on this field, what will happen? Based on that, my data will be getting segregated, isn't it? Say, for example, if I select this, say this category, if I click and if I click and drag, if I select and drag over here and I put over here, so this is the option. This option says applying filter on this page. If I select on furniture, everything will be sorted by furniture. It's not sorted, but everything will be filtered by furniture, filtered by office supply, filtered by technology. This is same which is been applied through your slicer. Same method है. फर्नीचर पे क्लिक करो, देखो पूरे विजुअल में सिर्फ फर्नीचर आ जाएगा. इस पे क्लिक करके हटा दो ऑफिस में सर्विस. तो सेम लाइक जो स्लाइसर आपको यहाँ पे वर्क करेगा. बट ये कहाँ पे हो रहा है? ऑन दिस पेज. जितने भी विजुअल्स ऑन दिस पेज है उस सब पे हो रहा है. अब आप बोलोगे क्या हम इसको भी कर सकते हैं? वैसा नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो कि जिसको लगाना है, वैसे ये नहीं है. ओके, यू डोंट हैव दैट सिलेक्शंस. ओके, लाइक दैट. अब ये क्या है? फिल्टर ऑन दिस पेज. मतलब मुझे हर एक पेज के लिए अलग अलग फिल्टर लगाना पड़ेगा. यस, बट लेट्स से आपने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, ये जो फिल्टर मैंने लगाया है मैं इसको भी निकाल देता हूं. ये जो मैंने कैटेगरी का उठा के फिल्टर यहाँ पे लगाया था, ये फिल्ट्रेशन जितने भी मेरे विजुअल्स है सब के सब विजुअल्स में आ जानी चाहिए एक साथ. तो क्या आ सकता है? हाँ, आ सकता है. इस कैटेगरी को उठाओ, उसके नीचे जो ऑप्शन है देखो, ये जो फर्स्ट है फिल्टर ऑन दिस पेज के नीचे फिल्टर ऑन ऑल द पेजेस, इस पे क्लिक कर दो. इफ आई सेलेक्ट फर्नीचर, नॉट ओनली हियर, you go anywhere, see it's all furniture only. ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर है, ये भी फर्नीचर है, ये भी फर्नीचर है. सब के सब फर्नीचर के बारे में बताएंगे. यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे भी सिर्फ फर्नीचर के बारे में दिख रहा है. ये सब फर्नीचर फर्नीचर, यहाँ पे आ जाइए. फर्नीचर फर्नीचर, एवरीथिंग विल फॉलो एंड ओनली फॉर रेफरेंस टू फर्नीचर ओनली. सिर्फ फर्नीचर के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स पता चलेगा. ओके, सो दिस इज हाउ इट अप्लाइज, दिस फिल्ट्रेशन अप्लाइज पेज फिल्टर ऑन ऑल द पेजेस. ओके, ये होता है ना. ये दोनों तो डिफॉल्ट है, इसके अलावा एक और होता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इस विजुअल के ऊपर ही मुझे सिर्फ फिल्टर करना है. दिस ऑप्शन अपीयर्स ओनली एंड ओनली व्हेन यू सेलेक्ट स्पेसिफिक चार्ट, स्पेसिफिक विजुअल, देन एंड देन यू विल सी दिस ऑप्शन. अदरवाइज ये है और ये है, ये दो डिफॉल्ट आपको हमेशा दिखेंगे. दिस विल ओनली अपीयर व्हेन यू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक चार्ट. यू विल हैव दिस filter on this visual. Filtering on this visual is automatically selecting those categories which you have selected for creation. कैटेगरी लिया, रीजन लिया और सम ऑफ सेट, ये तीनों फील्ड्स को उसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया. ये आपको ऑटोमेटिकली दिखा देता है. आपको उस पर और कोई ऐड करना है फीचर ऐड कर सकते हो, बट यू हैव दिस. इससे होगा क्या? फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ कैटेगरी, तो देखो कैटेगरी के लिए आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन दे देता है. अच्छा, ये चाहिए क्या आपको? तो ये सिलेक्ट कर लो. रीजन में देखना है, रीजन में देखो ऑप्शन है, उसमें आप खुद ब खुद कर लो. लाइक इट विल हेल्प यू फॉर योरसेल्फ. आपको खुद मदद कर देगा. जैसे सम ऑफ सेल्स में फिल्टर करना है क्या, लेस देन क्या करना है, एवरेज करना है, एंड करना है, क्या करना है, वो भी आपको बता देगा. तो खुद ब खुद आपको बताता है. ओके, लेट्स से कैटेगरी से करना है, कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, फर्नीचर पे कीजिए, फर्नीचर आ जाएगा. रीजन पे आना है, ईस्ट कर दो, सिर्फ ईस्ट का बताएगा. वैल्यू पे आना है, लेस देन, इक्वल देन, क्या है बताइए वैल्यू. लेट्स से ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन सेल्स, आई डोंट नो 10. अप्लाई फिल्टर. लेट्स से 100,000. कुछ भी नहीं रख रहा है इस केस में. 1000 कुछ भी नहीं मेरे ख्याल से. 100 करते हैं. 100 और 1000, 120 ऐसे करते हैं. 120 ये भी नहीं है.
सम ऑफ सेल्स है ना। हम्म, ठीक है, सम ऑफ सेल्स में कुछ आने नहीं वाला। लेट्स से हाँ। हम्म, हम्म। अब सेल्स के बारे में तो सम ऑफ सेल्स है, सम ऑफ सेल्स तो बताएगा नहीं ना। तो मैंने क्या किया भाई, उठा के एक फील्ड ऐड कर दिया जो अपने डेटा में नहीं है, यहाँ पे अपने डेटा में यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, वहां से उठा के मैंने कैटेगरी प्रॉफिट को वहां पे पुश कर दिया। अब ये डिटेल्स जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या बता रहा है, इज एन एडवांस फिल्टर सेइंग दैट जिस किसी भी कैटेगरी में प्रॉफिट अगर 10 और लेस देन 20 इन दोनों के बीच में है, तो वही आपको डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है। ओके, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कितना है सम ऑफ सेल्स, यहाँ पे डिटेल्स ये है। प्रॉफिट को उठा के मैं फुल टिक में डाल देता है यहाँ पे। Item get profit is greater than 10 and less than 20. ये 10 और 20 सेल्स का होता है। प्रॉफिट के बजाय और सम, लेट्स से रीजन, रीजन नहीं नहीं पे आती है, रीजन लिस्ट। ओके, आपके डेटा सेट में सेंट्रल है, रीजन है, ऑलरेडी था। व्हाट व्हाट पुट दिस, सेगमेंट है क्या? नहीं, सेगमेंट नहीं है ना, फिर से पुट सेगमेंट करते हैं। लेट्स से पुट सेगमेंट। तो सिलेक्टिव सेगमेंट्स कॉर्पोरेट का है, कॉर्पोरेट का आपको डिटेल मिल जाएगा फिल्टर करके। ओके, यहाँ पे डिटेल ऐसे। अगेन आप यहाँ पे सेगमेंट का उठा के फुट टिप पे डाल दीजिए। लुक ओवर हियर, दिस इज consumers, consumers and consumers. Since we have filtered the data based on the output, जहाँ जितने भी रीजन है सब में सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स का ही आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखेगा, लाइक दैट। सो ऑलरेडी वी डो वी आर नॉट हैविंग एनी रीजन कॉलम ओवर हियर, पहले जो हमने किया था। पर फिर हमने क्या किया, रीजन ऐड किया। सॉरी, सेगमेंट नहीं था, बट फिर हाँ सेगमेंट नहीं था ना, फिर भी हमने क्या किया, सेगमेंट ऐड किया। ओके, विद दैट सेगमेंट, क्योंकि रीजन था, कैटेगरी था और सेल्स था, बट वी हैव एडेड सेगमेंट आल्सो। तो आपको सेगमेंट चाहिए तो सेगमेंट भी यहाँ पे कॉल आउट करके कर सकते हो। जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर भी ऐड किया हमने, वो भी आप कर सकते हो। तो फिल्टर कैन हेल्प इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मैनर यू कैन ऐड दैट। ये कौन सा है स्पेसिफिकली, ये इस विजुअल के बारे में ही बता रहा है, इट इज नॉट अफेक्टिंग एनी अदर विजुअल्स। सो लाइक slicer which can affect all the visuals, here a filter can also affect on all the pages, specific visuals and overall pages also. So we have options for interacting the data. ओके, नाउ सेट दैट, ये सब होने के बाद में लेट्स से कि अब ये आपका जितना भी एनालिसिस करना था या जो कुछ भी करना था उसमें ना
बाय डिफॉल्ट ऑप्शन थे वो हो गए, मुझे कुछ और भी चाहिए। और चाहिए मतलब आई वांट मोर विजुअल्स देन विच इज अवेलेबल एज रेगुलर रेगुलर बेसिस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट मोर ऑप्शन, गेट मोर विजुअल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है गेट मोर विजुअल्स का, उस पर क्लिक करना है। ये लेकिन तभी अवेलेबल होता है, ये तभी एक्टिव होता है जब आप लॉग इन करते हो। ओके, जब आप पावर बीआई में लॉग इन करते हो तभी। लॉग इन करने से पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, साइन अप। ओके, पावर बीआई में आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद में आपका आता है साइन इन। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, यू माइट नॉट हैव योर नेम ओवर हियर, या जो भी आप साइन अप साइन इन करोगे उस नाम से नहीं होगा। ये नाम लाने के लिए आपको पहले करना है साइन अप। ओके, साइन अप। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आके क्लिक करके साइन इन करना है। अब वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, लेट्स से उसके लिए फर्स्ट स्टेप जो है, पहले आप आपके ब्राउजर पे आइए। पहले आपके ब्राउजर पे यहाँ पे लिखिए पावर बीआई साइन अप, ये ऐसे क्लिक कर दो। सेम जो मैंने लिखा है यहाँ पे जो है उस पे सेलेक्ट कर दीजिए। ओके, अब जिन लोगों का फर्स्ट टाइम साइन अप कर रहे हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आ जाएगा। ओके, जो लोग फर्स्ट टाइम साइन अप कर रहे हैं उनका आ जाएगा ऑप्शन। जो फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे उनको वो प्रॉपर मेथड नहीं मिलेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मैं जब यहाँ पे देखो साइन इन की जगह पे, ये साइन अप है ना, देखो ये मैं जब इस पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ इस वाले पेज पे, तो देखो ये ऑलरेडी साइन अप है ना मेरा, तो देखो इस तरह से लिख के आएगा। ओके, जस्ट वेट, प्लीज सॉल्व द नेक्स्ट, pick one square that shows the two identical objects. Two identical objects. Hmm. This will say that confirmation details. You are already having this license. Is it you are already having with this name? But जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो आपको यहाँ से आना चाहिए, लेट गेट स्टार्टेड, फिर ये और फिर यहाँ पे आना चाहिए। तो ये तीन स्टेप मेरे नहीं दिखाएंगे जिनका ऑलरेडी है। ओके, तो जिनको दिख रहा है, जिनको ऑप्शन है, ओके, जिनको साइन अप करना है ना, तो यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए। ये जो लिंक है, ये जो लिंक है इस पे क्लिक करो। ओके, इस पे ऐसे क्लिक करो। हियर आई विल कॉपी दिस लिंक। मैं इसको थोड़ा एडिट कर लेता हूँ। गो बैक टू टेक्स्ट ओवर हियर, इसको पेस्ट कर देते हैं। मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। कंट्रोल ए, इसको फॉन्ट को बढ़ा देता हूँ एडिट करने के लिए। कर देता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, वी। प्लीज शो आइडेंटिकल, कितनी बार करना पड़ेगा? ऑलरेडी है, अभी भी नहीं हुआ चेंज, और चेंज करना पड़ेगा। तो दिस में कंट्रोल ए कंट्रोल सी। कंट्रोल सी। कितना डिलीट करना पड़ेगा मुझे? हम्म,
ठीक है। एनी हाउ, करना क्या देखो बताता हूं मैं आपको। ये तो चलो मैं बता रहा था, बट एनी हाउ, आपको इस पेज में आना है। कौन से पेज में आना है आपको? एजी वर्ल्ड करके है ना पे, एजी वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे आना है। यहाँ पे साइन अप फॉर पावर बीआई पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसे इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आना है साइन अप ऑप्शन। तो यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट सो सो द साइन अप पेज। ओके, सो द साइन अप पेज, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको वो साइन अप के लिए लेके आएगा। ओके, साइन अप के लिए वहां पे लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इस गेट। अच्छा, एक काम करो, आप में से कोई ना स्क्रीन शेयर कर दो ताकि मैं वो रेफर कर दूं। है कोई? हाँ सर, मैं करता हूँ। करो करो, फटाफट कर दो। हम्म। मिनट से। ब्राउजर पे आइए ना। हाँ, ब्राउजर पे हाँ, ही। क्या टाइप करना है सर, पावर भी है? साइन अप। अप इन नहीं, अप करना है आपको। नीचे एजी वर्ल्ड करके आया होगा, देखो। हाँ, उस पर हाँ, क्लिक कर ये आ दीजिए। हम्म। इसके अंदर में देखो साइन अप का एक लिंक होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए नीचे आके। गया। साइन यस, अप एक पेज और ना? दे। हाँ, साइन अप पेज। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो फर्स्ट टाइम जब आओगे। ओके, अब ये बोलता है आपको ईमेल देना है। ऊपर में उसने स्पेसिफिक लिखा है, आपके स्पेसिफिक पर्सनल जीमेल वगैरह देखोगे तो होगा नहीं। ओके, इट सेज एंटर योर वर्क और स्कूल ईमेल एड्रेस, यू कैन नॉट यूज योर जीमेल, याहू मेल आपका खुद का नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है, एक टेम्पररी, ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक डोमेन का हमें क्रिएट करना है। तो अभी आप क्या करो, एक नया टैब ओपन करो, वहां पे लिखो टेम्प मेल। नया टैब टैब ओपन कीजिए नया। उसमें लिखिए टेम्प, TEMP, टेम्प मेल, टेम्पररी मेल, TEMP, टेम्प मेल। हाँ, एंटर कर दीजिए। फर्स्ट जो है ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिए। यस, टेम्प मेल पे क्लिक कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है डायलॉग बॉक्स, उसमें एक टेम्पररी मेल का एक आईडी क्रिएट होगा, उसको यूज करना है हमें। ओके, और पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने तक इसको क्लोज नहीं करना है विंडो को। ओके, इसमें आपको OTP वगैरह आता है फॉर प्रोसेस करने के लिए, तो वो हमें करना है, तो क्लोज नहीं करना है। अब इसको कॉपी कर लो, ये जो है नोहा 8395, ये जो भी है कॉपी कर लीजिए इसे, और ये वहां पे डाल दो। हाँ, यहाँ पे कर दो पेस्ट। नेक्स्ट कर दीजिए। इस आईडी को कहीं पे सेव करके रख लो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जो भी आपको लगता है, बट मेक श्योर कि इसको याद रखो। नॉर्मली हम सेव कर लेते हैं, बट फिर भी कभी भी अगर बाद में रीस्टार्ट कुछ करना हुआ ना, तो वो याद रख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट कर लीजिए इसे। प्लीज वन स्क्वायर फॉर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कौन सा है उसमें सेलेक्ट कर लीजिए, थर्ड वाला। ओके, आई गॉट इट फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन, सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट कर दीजिए। ऊपर आ जाइए, थोड़ा स्क्रोल अप, स्क्रोल अप कर लीजिए। हाँ,
हाँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो आपके जेन्युइन है ना, आपके सही में जो नाम है वो डालिए। माइक्रोसॉफ्ट का ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यूज नहीं करेगा या कुछ छुपेगा, मतलब ऐसे कहीं नहीं जाएगा ये। सो जो आपका नाम है, लास्ट नेम है, जहाँ कंट्री है, जो भी है, जो है सही है वो डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ऊपर आ जाइए, आए करके आ जाएगा। फोन नंबर आपका, जॉब टाइटल जो डालना है डाल दीजिए। पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए। ओके, आपको वेरिफिकेशन कोड आया होगा, जो टेम्प मेल था ना, जो हमने टैब ओपन रखा है, वहां पे एक वेरिफिकेशन कोड आया है, वो यहाँ पे डाल दो। यहाँ नीचे पे। स्क्रॉल कीजिए। हाँ, स्क्रॉल कीजिए नीचे। ओके, देखो 1980 ऊपर गया ना, देखो। हाँ, 1980 49 डाल दो वहां पे। 1980 49। 1980 49। हाँ, नीचे आ जाइए, स्क्रॉल कीजिए नीचे और नेक्स्ट कर दीजिए। गेट स्टार्टेड। क्लोज कर दीजिए ऊपर। लेट्स गो। क्लोज क्लोज कर दो, क्लोज। ऊपर जो है क्लोज ना, कर। देखो राइट साइड कॉर्नर जो क्लोज, हाँ उसको क्लोज कर। ओके, ये आपका हो गया अभी। ओके, अभी आपको क्या ओके। करना है, आपके ब्राउज पावर वे पे आ जाइए अभी। हम्म। अब यहाँ पे राइट साइड ऊपर में जो साइन इन है, उस पे क्लिक कीजिए। साइन इन हाँ ऊपर। सर। हाँ, उस पे क्लिक कर दीजिए। वहां पे हाँ, इसको जो सेम ईमेल आईडी आपने यूज किया था अभी साइन अप करने के लिए, वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ओके, कंटिन्यू कर दीजिए। एक बार फिर से आपको पेस्ट करना पड़ेगा वो। हाँ, कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए और पासवर्ड एंटर कर दीजिए। साइन इन कर दीजिए अभी। हाँ, ऑटोमेटिकली साइन इन करने के लिए इसे, हाँ, ये सॉल्व दैट कर दीजिए। डन। थोड़ा वेट कीजिए, ऊपर में देखो आपका नाम चेंज होगा साइन इन की जगह पे।
हो गया. Okay. Now this is how we have successfully sign up करके हमने complete किया है. Okay. Now we'll stop over here today. मंडे को जब आएंगे तब तक लैब को असाइनमेंट दे दूंगा मैं, उस पर आप डिटेल फाइंड आउट कीजिएगा. मंडे को आएंगे तो इससे ज्यादा और हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं उस पर एनालिसिस करेंगे. बट फॉर नाउ जिन जिन लोगों को यहाँ पे साइन अप करना है ये डिटेल्स को, उसको ये वीडियो देख के फॉलो जरूर कीजिएगा. ओके, एवरीथिंग इज देयर इन दिस वीडियो. मेक श्योर यू फॉलो दैट. टिल दैट, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस. गुड नाइट, टेक केयर. Thank you, sir. Thank you, sir.